Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. I'm Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. धन्यवाद अनुभा और नमस्कार हमारे सभी श्रोताओं को। मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक ताजा आर्थिक समाचार। आज सोमवार है, आपके सवाल भी आज कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम में हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे। सवाल पूछने के लिए इन नंबरों पर आप हमें फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। प्रमुख खबरों पर चर्चा और सवालों के जवाब देने के लिए आज कार्यक्रम में ऑनलाइन आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। डॉक्टर यामिनी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है अनुभा। Wholesale price-based inflation rises to 2.03% in January, mainly due to rise in the prices of manufactured products. And Sensex gains around 1% to hit new record high, closes above 52,000 mark. Nifty settles above 15,300 levels. विनिर्मित उत्पादों की कीमतें बढ़ने से जनवरी माह में थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर 2.03% तक पहुंची। सेंसेक्स 1% की बढ़त से नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर 52,000 के ऊपर हुआ बंद। निफ्टी ने 15,300 के स्तर को किया पार। And let's begin with the stocks. The BSE Sensex today ended with gains of more than 1% to hit fresh record high. The key domestic indices climbed amid positive global cues. The Sensex closed above 52,000 mark for the first time, while the NSE Nifty settled above 15,300 level. The BSE Sensex climbed 610 points or 1.18%. up at 52,154, and the NSE Nifty added 151 points or 1% to finish at 15,315. The broader market at BSE also gained. The BSE Mid Cap Index was up 1.4%, while the BSE Small Cap Index appreciated 0.37%. In the Sensex pack, shares of 19 companies climbed while 11 logged losses. In sectoral indices, 12 out of 19 sectors climbed. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,358 companies gained while 1,681 declined. Shares of 154 companies remained unchanged. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 1% से अधिक बढ़त दर्ज करके नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में उछाल आया। सेंसेक्स पहली बार 52,000 के स्तर से ऊपर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 15,300 के स्तर को पार कर गया। सेंसेक्स में 610 अंक यानी 1.18% की वृद्धि दर्ज करके 52,154 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1% की बढ़त से 151 अंक ऊपर 15,315 दर्ज हुआ। व्यापक बाजार में भी बढ़त दर्ज हुई। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.4%, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.37% लाभ में रहे। Yamini, before we take our call from our listeners, a quick comment on the continuous rise in the stock markets. Do you see the markets rallying further in medium term?
Well, there is a positive territory to the overall markets, primarily because of the earnings, quarter three earnings, which have shown that there is a good recovery of the economy. Also, there is positivity overall in terms of the macroeconomic indicators. So, the volatility is down lately, but to say that the volatility will continue to remain low is not there, because there are stretched valuations at the moment. So it is possible that the dip may come in the next week or so. And we've been joined by our first listener on the program today. It's Sanjay from Gurugram. Sanjay, welcome to the program and ask your question. Thank you very much. My question is मेरे को ना एक सलाह चाहिए. मैंने बैंकिंग में इन्वेस्ट कर रखा है और 100% से ऊपर मेरे को प्रॉफिट हो चुका है, बट मुझे लॉन्ग टर्म मतलब मुझे नियर फ्यूचर में पैसे की जरूरत है नहीं. सो व्हाट इज योर सजेशन? शुड आई सेल द शेयर्स, बुक द प्रॉफिट, और आई कैन जस्ट कीप इन माय डीमैट अकाउंट एंड लेट इट बी? अगर आपको अभी जरूरत नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल मार्केट्स पॉजिटिव टेरिटरी में ही रहेंगी. हो सकता है डाउन आए, पर वो वापस पॉजिटिव टेरिटरी में जाएंगी, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ की पॉजिटिव टेरिटरी है और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की पॉजिटिव डायरेक्शन है. और दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जितेंद्र. हेलो. गुड इवनिंग टू जितेंद्र जी. मार्केट मंत्रा टीम एंड यामिनी मैम. My question to ma'am is that, in your opinion, will this bull market continue for 2-3 years, like it happened in 2004-07, or it will fizzle out in November, December? Thank you. Well, the bull market is likely to be there because of the positive tendencies in the market, whether it's the earnings that are showing a positive result, or whether it's the robust budget which has given a good push to fiscal stimulus to the overall economy, as well as your foreign exchange reserves, which are at a very high level, and the FII flows. Overall positive territory. Yes, the bull run is likely to continue. There can be situations where the markets may come down at certain points, 600 to 1,000 some days, but then overall positive territory would be maintained. And moving on, the rupee today appreciated 7 paisa to 72 rupees and 69 paisa against the US dollar amid gains in the domestic stocks and the weakness in the US currency. On the other hand, the dollar index, which indicates the US dollar's strength against a basket of 6 other leading currencies, fell 0.15% to 90.35 in intraday deals. And we have now Nazar Mohammed from Amethi in the show. Nazar Mohammed, welcome to the program. जी नजर मोहम्मद जी, सवाल पूछिए अपना. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आम आदमी के पास टीका कब तक आएगा लगने के लिए? आम आदमी का आप सवाल दोबारा दोहराएंगे अपना? नहीं, जैसे देहातों में आम जैसे अभी सरकारी आदमियों को लग रहा है, तो प्राइवेट आदमियों को कब टीका लगेगा कब? टीका लगने की जी, सरकार ने 35,000 करोड़ इसके लिए एलोकेट किया है. पहले हेल्थ वर्कर्स को लगेगा और फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स के जो है माना जा रहा है उनको लगेगा. उसी के साथ शायद सरकार अपनी नीति स्पष्ट करेगी कि वो कब मार्केट में आम लोगों के लिए लेकर के आएगी. पहले जो लोग सुरक्षा प्रदान करते हैं उन्हें टीका लगना जरूरी है. और नजर मोहम्मद जी, यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप कोविड से संबंधित या टीकाकरण से संबंधित कोई भी ज्यादा जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ से 9:30 बजे रात में कोविड पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित होता है. आप उस कार्यक्रम को जरूर सुने. उसमें आपको कोविड टीकाकरण के बारे में भी बहुत बहुमूल्य जानकारी, उपयोगी जानकारी मिल सकेगी. बहरहाल आगे बढ़ते हैं. कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं मुश्ताक अली फोन लाइन पर. हेलो. हेलो जी मुश्ताक. गुड इवनिंग टू ऑल. जी गुड इवनिंग. जरा बताइए कि अभी इस टाइम में नए सिरे से किस शेयर में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा, और गोल्ड प्राइस का नीचे आएगा ना फिर ऊपर जाएगा? ये 2 सवाल बताइए. थैंक यू. आईटी, फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर्स अच्छे सेक्टर्स हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं. बैंकिंग भी एक अच्छा सेक्टर है जिसमें निवेश किया जा सकता है. ओवरऑल पॉजिटिव टेरिटरीज रहेंगी इन सेक्टर्स के अंदर. देखा जाए तो कैपिटल गुड्स में भी ऐसा लगता है कि जो है पॉजिटिव टेरिटरी मेंटेन रहेगी.
जहां तक गोल्ड का सवाल है वो ओवरऑल एक सेफ इन्वेस्टमेंट की तरह मेंटेन रहेगा, तो एक हायर रेट पे रहेगा, बहुत ज्यादा पीक नहीं करेगा पर अब स्टेबलाइज्ड पोजीशन में रहेगा जिस पे है. And now we've been joined by Pankaj, who's calling from Delhi. Pankaj, welcome to the program. Ask your question. नमस्कार. मेरे 2 क्वेश्चन है. पहला ये है कि मेरा म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है वो है कि लार्ज के 50% एंड 30% मिड कैप एंड 20% स्मॉल कैप. तो पहला क्वेश्चन ये कि ये रेशो ठीक है या दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी मुझे मेरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में ओवरऑल 50% का प्रॉफिट आ चुका है, तो क्या मैंने उसमें भी रहना चाहिए या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? जी, अगर आपको पैसे की आवश्यकता है और आपको लगता है कि आपने काफी गेन्स बना लिए हैं तो ये एक अच्छा समय होता है जब हाईएस्ट हो मार्केट तब निकलने का और फिर निवेश करने का जब मार्केट्स लो आए. मार्केट्स में डिप आ सकता है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, पर अगर आप मेंटेन भी रहते हैं तब भी आपको पॉजिटिव टेरिटरी मिलेगी फ्यूचर के अंदर. और हमारे साथ अब कोलकाता से रमेश जुड़ गए हैं. हेलो जी रमेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत. नमस्कार. मेरी मम्मी 65 साल की है, उनके पास 65 लाख है. वो एक मंथली इनकम के तौर पर 8 से 10 हजार महीने के चाहती है. इसके लिए उन्हें कौन सी स्कीम में जाना चाहिए जहाँ पैसा पूरी तरह सेफ हो उनका और मंथली पैसा जहाँ ज्यादा, जैसे पोस्ट ऑफिस में, LIC में प्रधानमंत्री जी का पेंशन स्कीम या RBI बैंक का पेंशन स्कीम, या इन तीनों में कोई जो ज्यादा अच्छा हो वो कृपया करके बताएं. जी, आप सीनियर सिटीजन्स के लिए स्कीम है, उस FDs होती हैं उसके अंदर निवेश कर सकते हैं. अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी खुल जाएंगे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, उनमें निवेश कर सकते हैं. ऐसे ही पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीम्स हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसके अंदर मंथली इनकम्स भी आती हैं. ये सारे सेफ ऑप्शंस हैं FD के अलावा, तो आप इन सभी में निवेश कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो पोर्टफोलियो को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं जिसमें कुछ पोर्शन आप म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं जो लार्ज कैप्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो इक्विटी के, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही सिर्फ निवेश करते हो. दिल्ली से हमारे एक और कॉलर, इनका भी नाम रमेश है, फोन लाइन पर जुड़े हैं. हेलो रमेश जी. जी हेलो. I have a question to ma'am. This is regarding investment in alternative investment opportunities. Funds are available in the market for the investment. You have to generally invest 1 crore of rupees. Is this the right time to do that? Because they invest in equity shares. Well, equity shares are good opportunities for investment. As I said, they will continue to remain in positive territories, though the volatility can heighten at times and which can make somebody a little troubled with the fact that they've invested at the peaks. But the overall positive territories will take the Sensex higher as the macroeconomic impetus which has been given, or the fiscal stimulus which has been given by the government, as well as the accommodative monetary stance and the growth rates which are expected in the near future are all in the positive territory. And before we take the next call, another important story of the day. The wholesale price-based inflation rose to 2.03% in January 2021, mainly due to rise in the prices of manufactured products. According to the Commerce and Industry Ministry data released today, WPI jumped to the highest since February 2020, even as food prices have now come down. The WPI inflation was 1.22% in December 2020 and 3.52% in January last year. And now on the phone line we have SPS Jain from Greater Noida. Mr. Jain, welcome to the program. Please ask your question. नमस्कार और मैडम को भी नमस्कार. पिछले 1 महीने से मैं थोड़ा अपना प्रॉफिट बुक कर रहा हूं, जहां भी 15-20% से ऊपर और 1 साल से ऊपर होल्डिंग है. अब वेट कर रहा हूं कि मार्केट कब क्रैश करे, तो इसी बीच में इस पैसे को कहां रखने की स्ट्रेटेजी हो. मेरा अपना प्रपोजल है कि इसको लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर दें और जब मार्केट डाउन हो तो इसको फिर प्रॉपर मार्केट में लेके आए. तो आपकी इसके बारे में क्या एडवाइस है? जी, मार्केट्स बहुत ज्यादा क्रैश नहीं करेंगी. जो ओवरऑल स्ट्रेच्ड मार्केट्स हैं, देखा जा सकता है कि डिप आ सकता है वॉलेटिलिटी की वजह से, ओवरऑल सम रिएक्शंस की वजह से भी डिप आ सकता है. पर क्योंकि मार्केट्स अब रिकवरी फेज में है और वैक्सीन से कहें या
जो ओवरऑल इम्पेटस है उसकी वजह से कहें वो पॉजिटिव टेरिटरी में ही रहेंगे। जहां तक आपका लिक्विड फंड्स की बात है, आप उसको जो है अगर क्योंकि आप उसे इमीडिएटली कभी कुछ टाइम में निवेश करना चाहते हैं तो एफडीज ही एक आपके पास सोर्स रहता है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स, उनमें भी निवेश कर सकते हैं। हमारे एक और श्रोता गाजियाबाद से फोन लाइन पर हैं संजीव। संजीव जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। जी धन्यवाद, और यामिनी जी को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार जी। यामिनी जी, मेरा क्वेश्चन है कि जब मार्केट में इतना ऑप्टिमिज्म है, सभी तरफ बाइंग है, और तो फिर हमारे डीआई को सेलिंग क्यों दिख रही है इस टाइम पे? मतलब वो क्या कोई नेगेटिव ट्रिगर देख रहे हैं वो, जब एफआईआई इतना इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो? जी ओवरऑल एफआईआईज उनमें निवेश करते हैं जहां पे ज्यादा पॉजिटिव रिटर्न्स नजर आए, और इमर्जिंग मार्केट्स में जो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जैसे मैंने कहा जीडीपी का ग्रोथ रेट 11.5% के आसपास अनुमान किया जा रहा है, वो एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर है एफआईआईज के लिए। बाकी जो एक मार्केट मैकेनिज्म की तरफ रुख है, उससे भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिलता है कि इकोनॉमी जो प्रोस्पेरिटी है वो बढ़ेगी इंडिया की तरफ, और खासतौर पे कंपनीज में भी इजाफा होगा मुनाफे में। तो ओवरऑल पॉजिटिविटी है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को लेकर के। जहां तक सेल सिग्नल की बात है, वो क्योंकि मार्केट्स हाईएस्ट लेवल्स पे पहुंच रही हैं और लोगों ने काफी प्रॉफिट्स बनाया है फ्रॉम मार्च के लेवल से, तो वो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग की बात कर रहे हैं ताकि आपके जो मैक्सिमम अमाउंट है वो आपको उस समय रियलाइज हो सके। And we've been joined by Rajesh Shah from Mumbai. Rajesh, welcome to the program. Yeah, my question is this the beginning of a bull market? Well, it is not a beginning of a bull market, but yes, there is a bull market phase that is going on for a very long time, as you can see from the sessions and the peaks for the markets. It will remain at a sustained level, that can be said. There can be, as I said, volatility in the markets, which can push the markets down in certain days, but the overall positive territory would be maintained. अगले कॉलर को लें, इससे पहले हम एशियाई शेयर बाजारों पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार की बात करें तो अमेरिका में नए वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज की उम्मीदों के बीच विश्व में कोरोना वायरस टीकाकरण शुरू होने से अर्थव्यवस्था में सुधार की आशा से एशियाई बाजारों में तेजी का रुख बना हुआ है। जापान के निकेई में 1.9% और दक्षिण कोरिया के कोस्पी में आज 1.5% का उछाल आया। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 0.2% बढ़त में रहा। चीन के शंघाई कंपोजिट और हांगकांग के हैंगसेंग में आज कारोबार नहीं हुआ। यूरोपीय बाजारों में भी अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान बढ़त देखी गई। लंदन का फुट्सी 100 1.5% मजबूत हुआ। फ्रांस का कैक 1.2% चढ़ा और जर्मनी के डेक्स में 0.4% की बढ़त दर्ज हुई। And we have now Dinesh on the phone line with us. He's calling from Delhi. Dinesh, welcome to the program. नमस्कार, मार्केट मंत्री की टीम को मेरी तरफ से नमस्कार। मैडम, मेरा जो सवाल है वो ये है कि सरकार जो हैवीली बोरो कर रही है और उससे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है 10 ईयर वाली, उसकी जो यील्ड है उनके बीच का क्या रिलेशन है, और सरकार जब हैवीली बोरो करती है तो ये जो चीज है ये इंटरेस्ट रेट को कैसे इम्पेक्ट करता है? तो इस रिलेशनशिप को थोड़ा समझाइए। जी, बोरोइंग्स जब सरकार करती है वो अपना फिस्कल डेफिसिट को मीट करने के लिए करती है और जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से करती है। जो गवर्नमेंट बोरोइंग्स होती हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के द्वारा होती है, और वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं वो एक फ्लोर रेट इस्टेब्लिश करती हैं क्योंकि वो रिस्क फ्री रेट होती है, और उसी के ऊपर बाकी की लोग जो है सिक्योरिटीज से पैसा ले सकते हैं। तो जैसे कॉर्पोरेट्स वगैरह लेंगे उनके रेट जो है ज्यादा होंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट रेट से। जहां तक यील्ड की बात है, यील्ड होता है आपका इंटरेस्ट पेड ऑन दी प्राइस। तो अगर प्राइस कम होती जाती है और इंटरेस्ट सेम रहता है तो जो है यील्ड आपकी बढ़ जाती है। प्राइस जैसी ही बढ़ती है वैसे ही जो है आपका, क्योंकि जो कूपन रेट है वो सेम रहता है, तो आपकी यील्ड कम हो जाती है। नोएडा से विवेक सवाल पूछना चाहते हैं। विवेक जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, नमस्कार जी। मेरी मदर का एफडी थी 1 लाख रुपए की। अभी क्या धीरे धीरे वो एफडी का रेट्स कम होते जा रहे हैं जी। सो एनी वे वी कैन इन्वेस्ट दिस 1 लाख रुपीज। आई एम टोल्ड कोई लिक्विड फंड होता है, अगर आप कोई सजेस्ट कर सकें कौन सा लिक्विड फंड या कोई एनी वेन्यू वेयर
she can keep and maintain her stock. Thank you. जी इनकम फंड्स भी हैं और पोस्ट सीनियर सिटीजन हैं तो वो सीनियर सिटीजन एफडी में इन्वेस्ट कर सकती हैं, उसके रेट्स अभी भी हाई हैं। और अगर वो जो है इक्विटीज में जाना चाहती हैं तो लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करें, और अगर वो सिर्फ बॉन्ड्स में जाना चाहती हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें भी निवेश कर सकती हैं। और अब यामिनी, अगर आज हम बाजार की बात करें, शेयर बाजार की, तो बैंकिंग और वित्तीय सेवा शेयरों में आज काफी अच्छी खासी तेजी देखी गई। निफ्टी बैंक इंडेक्स लगभग 3% के आसपास जो है बढ़ा है। तो ये बैंकिंग शेयरों में तेजी क्या बताती है? अर्थव्यवस्था में तेज रिकवरी हो रही है या और भी इसके कुछ मायने हैं? जी बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी जो है, जैसे हमने कहा कि क्वार्टर 3 अर्निंग्स एक तो पॉजिटिव रोल प्ले करती हैं, और ओवरऑल जो क्रेडिट सेंटिमेंट है वो भी इम्प्रूव किया है, इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट भी इम्प्रूव किया है। तो ओवरऑल बैंक्स की स्थिति बेटर होने की आशा है, क्योंकि एनपीएस रिड्यूस हो जाएंगे जैसे जैसे इकोनॉमी की रिकवरी फास्ट होगी, क्योंकि लोग वापस अपने बिजनेसेस पे जा पाएंगे और अर्निंग्स कर पाएंगे। बैंकिंग की स्थिति फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक ग्रोथ भी दर्शाती है, जो एक पॉजिटिव साइड पर है। तो ओवरऑल अगर बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा करते हैं या उनके तरफ पॉजिटिविटी होती है तो वो एक इकोनॉमिक रिकवरी और इकोनॉमिक पॉजिटिविटी की तरफ दर्शाते हैं। And from Bangalore, we now have Mr. Shantaram on the line. Mr. Shantaram, welcome to the program, and please ask your question. Hello? Looks like we don't... जी शांताराम जी। हाँ बोलो। हाँ जी, सवाल पूछिए आप अपना। हाँ, मेरा सवाल ऐसा है कि मैं 2-3 महीने पहले पूछा था, मगर उनके पास जवाब नहीं था। वो बोले हम इंक्वायरी करके बताएंगे। जी मेरा सवाल ये है, जैसा गोल्ड ईटीएफ है मार्केट में, वैसा मेरे को सिल्वर ईटीएफ लेने का है। तो सिल्वर ईटीएफ मिलता है कि नहीं मिलता है? क्योंकि मेरे पास 2 साल पहले ले आला सिल्वर फिजिकल है 2 किलो, उसका भाव अभी डबल हो गया है। तो मेरे को फिजिकल निकालने का और उसके बदले ईटीएफ लेने का, तो किधर जाने का, कैसा होगा ये सब? जी जी जहाँ तक मुझे जानकारी है, गोल्ड ईटीएफ की जानकारी है। कमोडिटीज मार्केट में सिल्वर भी ट्रेड होता है, तो आप कमोडिटीज मार्केट में चेक कर सकते हैं जो सिल्वर की प्राइसेस हैं, जिसमें आप फिजिकली उनको बेच सकते हैं। ईटीएफ के बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है, ये मैं भी पता करके ही आपको बता पाऊंगी। Moving on, the oil prices today soared to their highest in about 13 months as fears of heightened tensions in West Asia prompted fresh buying. Hopes that a U.S. stimulus and easing down of lockdowns also buoyed fuel demand. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $63.40 per barrel, while WTI crude prices were around $60.80 per barrel. And the global, Yamini, we talk about the fuel prices, global markets worldwide, the fuel prices are at their peak. Do you see that coming down in near future, or do you see a rising trend given that OPEC Plus bloc has, has no plans as of now to cut their, to that restriction that they've placed on production? They seem to be, standing firm on it. Well, I think they have been indicative of supply cuts from certain areas, as well as, the demand is continuously recovering. So we do see that the oil prices would rise. I mean, it is not likely to come down unless there are any kind of complications that are developed with mutations of coronavirus, which may lead to more lockdowns. Till the time the vaccine is effective and it is leading to recoveries in most of the economies, we will see the oil prices moving up. जी, और अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ भी पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें निश्चित तौर पर बढ़ेंगी। तो इससे डॉक्टर यामिनी, आपको नहीं लगता कि महंगाई और बढ़ेगी आगे चलकर? जी बिल्कुल, एक इम्पोर्टेंट इनपुट कॉस्ट है हर एक चीज के लिए ऑयल, चाहे आप ट्रांसपोर्टेशन ले चाहे आप इंडस्ट्री ले, जिसके वजह से ओवरऑल
सभी प्राइसेस की जो इनपुट प्राइसेस हैं वो बढ़ जाती हैं और जो फिनिश्ड गुड्स हैं उसमें इमीडिएटली असर नजर आता है। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन फ्यूल प्राइसेस के बढ़ने से नजर आएगा महंगाई के ऊपर। Yamini, do you think the prices may come down when the liquidity also in the markets, in global markets, come down? Right now, most of the economies would maintain a good fiscal stimulus and an accommodative monetary stance. So I don't expect the liquidity to come down primarily because most of the economies are struggling with the technical recession which has been going on because of COVID-19. And as a result, they would maintain liquidity in the market. So I don't see it in the near future coming down. और अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज सोने की क्या कीमतें रहीं और घरेलू सराफा बाजारों में भी सोने का प्रदर्शन कैसा रहा, आइए नजर डाल लेते हैं इस पर भी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज सोना करीब 20 रुपए कम होकर 47,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ चांदी 900 रुपए की मजबूती से 70,000 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर को पार कर गई। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना गिरावट के साथ $1,821.20, जबकि चांदी मजबूत होकर $27.70 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। Yamini, in your opinion, what is a safer, investment option right now? Should one be, as a common investor, should one be investing in physical gold or should it be gold bonds and ETFs? Well, there are sovereign bonds which have come for gold, so which is a good option. Physical gold may only be invested in if you're looking into, keep it for a longer period of time because it is already at a peak level. So if you're buying it at a very high level as well. Again, the sovereign bonds, you'll keep it for a longer period of time. So by that time, you will also gain certain things. But at the moment, it is the highest level. So unless you really want gold, it may not be the right time to invest. Yamini, coming back to the wholesale price index, it has, soared to 2.03%, while it was 1.22% in December. Now, do you see that as also positive for the manufacturing sector because it does signify a rise in demand? If you look at the overall manufacturing sector, it is primarily because, the input costs have increased in the manufacturing sector, one because of fuel as well as because of the supply chain disruptions. Not so much of the demand primarily because that has not picked up to that pace that it may, cause so much of inflation. So it's primarily from the input side and the supply chain disruptions which is causing. But yes, the demand by fiscal stimulus and as well as with economic recovery is picking up, which will, lead to a higher inflation at a later date. But presently, I see them more of a result of the input prices because of fuel as well as supply chain disruptions. But the WPI also will have, is also related to the RBI rates. So do you see the central bank, what are your expectations of the key rates from the central bank? Well, the central bank has clearly said that it will maintain accommodative stance and there would be liquidity in the market which is likely to fuel the requisite investment and give recovery push to the economy. Though the policy rates are not likely to change because they're already at a very low level, and if they go further down, it will cause, like the overnight rates have touched the lowest levels right now. So I don't see them coming down in the near future. They would maintain the accommodative stance which is at the present level. Yamini Agarwal, thank you so much for joining us on the program and answering the queries of our listeners. And now before we close, look at the headlines first in Hindi. विनिर्मित उत्पादों की कीमतें बढ़ने से जनवरी माह में थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर 2.03% तक पहुंची। सेंसेक्स 1% की बढ़त से नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर 52,000 के ऊपर हुआ बंद। निफ्टी ने 15,300 के स्तर को किया पार। The wholesale price-based inflation rises to 2.03% in January, mainly due to rise in the prices of manufactured products. And Sensex gains around 1% to hit new record high, closes above 52,000 mark. Nifty settles above 15,300 mark. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. Do join tomorrow at 3 p.m.
when we'll be back with another edition of Money Matters. Till then, this is Vishal Sharma and Anubha Rohatgi saying bye-bye. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.